So I thought I must give you another bonus lecture. See, the bonus lecture are not intended to give you additional burden about something. These are, not very complex topics. They are simple. They are something you could have read yourself. They are something which, if you just barely peruse the section, you will come to have an understanding. Okay, this is all that it is about. Nothing extra. Like limitation under CRPC, pardon by judges and magistrates. So the effort here is to just make you properly understand that what the standard of pardon under 306 is, how does it relate to 307, and when can it be revoked, all that. These topics could have been read by yourself also. You all are now very capable of understanding the CRPC, and throughout my lectures I have also told you how to interpret a particular word, how to look at the proviso, in which context you need to understand a proviso. I have told you all of that, so you wouldn't be having problems in reading these sort of simple sections. These, from the exam point of view, they are almost never asked. At best, you might get a question once in a blue moon, like once in 5 or 6 years, that somebody asks in prelims that can judges grant pardon? If yes, then under which section? Something like that. Apart from that, this question never really comes anywhere. And in practice, you do see it during the course of the proceedings, but it is not a very common event. It is almost often a very rare event that a tender of pardon is given, especially in heinous crimes. But when it is given, then you need to know about its nuances. How does it work? On what parameters does it work? Then again, I'll be reiterating, these are not at all important topics, especially from the point of view of the exam. See, everything in CRPC is important from one point of view, but for your goals, for your personal goals, that is examination and even practice, these are not that important. For you, investigation, arrest, cognizance, trials, different types of trials, their procedure, 313B examinations, etc., etc., appeal, revision, these are important. Arrest, these are important things. Complaint procedure, issue of process, etc., etc. These are important things. For you, this is not very important that what are the grounds of pardon and what are not. You could have simply read section 306 to 308 and come to your own conclusion. It is very straightforward. Similar was the case for plea bargaining. In plea bargaining, the only thing you need to keep in mind that originally Supreme Court was not in the favor of it, because there were instances where during the course of some appeals, some of the contenders used to contend a point that please consider the matter on plea bargaining and let us off with a lesser sentence. Supreme Court said that Indian jurisprudence does not recognize plea bargaining, and in fact, if we recognize plea bargaining, it would mean that a person convicted of an offence or a person accused of an offence could be let off very easily. This course cannot be allowed. If that was the primary view of the Supreme Court at the earliest point of time regarding plea bargaining, it was not the Supreme Court was not in favor of it. But then the Law Commission report came under 142. 142nd report of the Law Commission was the most important one. It was the most important report. After that, your 154th report, then 177th report. The combined effect of all of that was, the combined effect of these three reports' recommendation was that the Parliament thought that why not experiment with it? Let us experiment with it. So that was it. That is all you need to know. Apart from that, the section is there. Alright. In US, there is a primary difference. In US, you talk about plea bargaining with the public prosecutor itself and the state. Here, the judge has been made a primary authority to oversee and supervise the matter. And the judge also has a very important role in the plea bargaining proceedings.
Here, the mutually satisfactory disposition is the essence, but in United States, you have to plead guilty to a less severe charge and come out with an agreement with the public prosecutor that drop the severe charges and I will plead guilty to less severe charges. So, difference is always there. I do not want to talk about the jurisdiction of the United States because it might confuse you, because the procedure there is very different. We are a common law country, and United States jurisdiction is primarily a civil law or a civil law country. See, two types of jurisdiction are there. One is that of a common law in the international scenario by the practices. Another is by the civil law. There the judges derive their power expressly by the terms of the statute, expressly by the statutory provision. Outside the statutory provision, they do not exercise any power, barring the Supreme Court, who gets his power from the Constitution. Here, but there are some extra powers in Commonwealth countries with the court, such as the power to punish for contempt, which is, if no provision at all is given in the statutory provision, it does not matter to the judges. Judges can always invoke the contempt jurisdiction. So the Contempt of Court Act for the judges is just a recognition that yes, the court does have power, so everybody should know about it. But let us suppose if the legislature were not to enact a Contempt of Court Act, it doesn't mean the courts are bereft of the power of Contempt of Court. The court would still have the power of Contempt of Court, because that power inheres within that court. So there is a primary difference between the common law country and a civil law country regarding their methodologies and practices, etc., but not on the constitutional side that much. There is a bit of a difference, but not that much. So I am digressing from the topic. The topic is not the comparative jurisdiction of the United States, UK and India, but the topic is your pardon. So first of all, the pardon under 306 and 307 are not at all similar to that pardon which you get under by the President of India under Article 72, or which the governor grants you, the governor of a state under Article 161. These are two different things. The primary purpose of tendering a pardon to an accomplice of a crime who is directly or indirectly concerned in an offense, the primary purpose of that is in order to get from such a person, from such an accomplice, a full and true disclosure of the whole circumstances which are within the knowledge of the accomplice as regarding the offense. So let me first tell you about a few definitions which will help you a lot. What is the difference between an approver and an accomplice? See, once an accomplice is granted pardon, accomplice is an accomplice in a crime. If let us suppose there are 4 persons who have committed an offense, then let us suppose the 4th one has been has applied for pardon. Let us suppose, for the sake of our illustration, the 4th person has applied for pardon. He was the part of such unlawful band which committed an offense. So this 4th person will be called an accomplice because he took part in the commission of crime. Anybody who takes part in commission of crime is called an accomplice. But when he has been granted pardon, he is then called approver. Alright, he is then called approver. So an accomplice, when he is granted pardon under 306 or 307, he is called an approver. So the difference between an approver and an accomplice is that an approver is always an accomplice, whereas an accomplice is not necessarily an approver, as an accomplice or co-accused becomes an approver after he has been tendered a pardon or granted concession on the condition that he will reveal the truth and will not hide anything in relation to an offense or offenses which he and other accused are alleged to have committed. Alright. So keep this definition in mind. All this will be clear when we'll go in evidence also, because accomplice evidence has a lot of nuances regarding that, but just focus on CRPC for now. So what is the object? See, the dominant object
under the CRPC is that offenders of heinous and grave crimes should not go unpunished. So the legislature in wisdom considered it is necessary to introduce these types of provision, because sometimes the offenders of heinous and grave offences might be let off because of lack of witness or any other extra ground. In those situations, the legislature thought that we should give the subordinate courts the power to grant pardon, because once they do, and on the condition that such accomplished person on getting the pardon shall disclose the entire situations before the court, and then the court will have additional evidences to actually punish the guilty person who was involved in a heinous or grave offense. So the object of 306 is to allow a pardon in case where heinous offences is alleged to have been committed by several persons, so that with the aid of the evidence of that person who has been granted pardon, the offender may be brought to justice. The basis of tender of pardon is not the extent of culpability of the person to whom pardon is granted, but the principle is to prevent the escape of offenders from the punishment in heinous offences for the lack of evidence. There can therefore be no objection against the tender of pardon to an accomplice, simply because in his confession he does not implicate himself to the same extent as the other accused, because all that section 306 requires is that the pardon may be tendered to any person believed to be involved directly or indirectly in privy to any offence. So it is not at all the requirement of section 306 that the person who has been granted pardon should implicate himself first and then implicate his co-accused or rest of the accomplices who have not been granted pardon. All that is required that he should fully disclose whole of the circumstances which are in his knowledge regarding the offence and the persons who have committed the offence. All that he knows regarding it. So generally in practice, see, this is not a rule of law, but in practice the pardon is actually granted to somebody who the court believes is to be least guilty. Alright. Now I'll first read the Bare Act section. Section 306. With a view of obtaining evidence of a person supposed to have been directly or indirectly concerned in a privy to an offence to which this section applies, the Chief Judicial Magistrate or a Metropolitan Magistrate, mark this, because CJM and Metropolitan Magistrate can grant pardon at the stage of investigation, inquiry or trial, while the Magistrate of first class can only grant pardon while inquiring into or trying the offence. And the magistrate of first class inquiring into or trying the offence at any stage of inquiry or trial may tender a pardon. Now this is very essential. You need to have difference between them. Metropolitan Magistrate and Chief Judicial Magistrate can grant at any stage of an investigation, inquiry and trial, while the magistrate of first class can only grant your pardon only at the stage where he is either inquiring into the offence or trying the offence. Alright. And may tender a pardon to a person. Word may is there, so it means it's an enabling provision, it's a discretionary provision. May tender a pardon to such person on condition of his making a full and true disclosure of the whole circumstances within the knowledge relative to the offence and to every person concerned, whether as the principal or abettor in the commission thereof. So the person can be the prime offender who has actually committed the offence, or the person can be an abettor. All that is required for such person to disclose that who is the principal, who is the abettor, or if he doesn't know about them, just disclose all that is within your knowledge regarding the offence and the offenders who might have committed the offence. All that is required. It should be a full disclosure, it should be a true disclosure. That's all which is the essence and the primary condition for the grant of pardon under 306. This pardon is a conditional pardon. Alright. Then subsection 2 says this section applies to any offence exclusively triable by the court of session or court of special judge, any offence punishable with imprisonment which may extend to 7 years or with a more severe sentence. So you know that this section will not apply to any offences which goes below 7 years or which is punishable with
less than 7 years. But if it is punishable with 7 years or more, then in those situations the provision of 306 will apply. If it is punishable with for a period, let us suppose 3 years, and the sentence cannot extend to 7 years under IPC or any other law, then 306 will not apply. But if the punishment can extend to 7 years or with a more severe sentence, let us suppose 7 years, 10 years or imprisonment for life or even death, then in those situations 306 will become applicable. Always know the scope. Subsection 2 explains you the scope under which what are the offences or what is the severity of sentence where 306 will apply. Alright. Now I come to subsection 3. Every magistrate who tenders a pardon under subsection 1 shall record his reasons for doing so. It is very important that he should record the reasons. He should record his reasons. And this is a mandatory provision because it has started with the word shall. Every magistrate who tenders a pardon under subsection 1 shall. Mandatory provision. B, subsection 3, clause B says whether the tender was or was not accepted by the person to whom it was made, and shall, on application made by the accused, furnish him with a copy of record free of cost. So, magistrate needs to record his reasons and whether the tender of pardon was accepted by the accused person or not. These are the primary considerations. Then we come to subsection 4. It is also a very important section, and both have been couched in mandatory terms. Subsection 4, clause A and clause B, both are mandatory. Every person accepting a tender of pardon made under subsection 1 shall be examined as a witness. It is very important. The whole purpose of granting him pardon is to have him as a witness. Alright. It cannot be done that you grant pardon to such a person and then not examine him as a witness during the trial. It is very important that such person who has been granted pardon, he should be examined as a witness. It is very important. It is a mandatory thing. Then clause B says shall, unless he is already on bail, be detained in custody until the termination of the trial. During bail chapters I have already explained to you that how do you get bail under subsection 4 clause B? How do you get bail to an approver? Then the answer is, since there is no provision in CRPC, because bail provisions generally apply to the accused or to an appellant, approver is neither. So how do you get him bail? Is he to remain in custody till the conclusion of the trial? The answer is that if you want an approver to have bail, you apply under 482 in inherent power. I also gave you the judgment of Delhi High Court. Do remember it. So just keep this in mind. As a magistrate, if you are a magistrate and you actually want to release an approver on bail, then after tendering him a pardon, you cannot grant him bail. So if you actually intend to grant him pardon as a magistrate, you first release him on bail and then you follow the provision of subsection 3 and 4 after the examination, because subsection 4 says unless he is already on bail, he has to be detained in custody. So if you have not granted him bail before, you have to have him in custody, and then your powers of bail will not work at all. Because as long he is an accused, you can grant him bail. As long he is an accomplice, you can grant him bail. But once he becomes an approver, then neither is an accomplice. Sorry, he is still an accomplice, but he is not an accused in this situation. He is now coming from the side of prosecution. Alright, he has been granted pardon, so he will be let off from the ill effects of the prosecution and the effects of conviction. So in those situations, you have to make sure that as a magistrate, if you intend to grant an approver bail, you have to release him on bail before tendering him the pardon. Alright, because once he has been given a pardon and he has accepted it, and after then you start recording his evidence, you cannot release him on bail then. Only the High Court can under 482. Alright. So know the both other provisions. That is why subsection 4b says shall, unless he is already on bail, be detained in custody until the termination of trial. Delhi High Court even said if the
if 482 was not there, na, this section would have been struck down. Subsection 5 says, when the person has accepted a tender of pardon made under subsection 1 and has been examined under subsection 4, the magistrate, taking the cognizance of the offence, shall, without making any further inquiry in the case, commit it for trial to the court of session if the offence is exclusively trial by the court of session, or if the magistrate taking cognizance is the chief judicial magistrate. Second, to a court of special judge appointed under Criminal Law Amendment Act 1952 if the offence is triable exclusively by that special court. In any other case, make over the case to chief judicial magistrate, who shall try the case himself. So generally legislature thinks that the court which has granted pardon should not try the offence. That is the essence. This is the general rule that is expected to be followed. That is why it is saying that when the CJM has granted pardon, you transfer it to the court of session. If the magistrate has granted pardon and the offence is exclusively triable by the court of session, then you transfer it to the court of session. But if in any case, if the offence is not exclusively trial by the court of session and the magistrate has granted the pardon, then you transfer it to whom? You transfer it to CJM. Then I come to power to direct tender of pardon. At any time after commitment of a case, but before the judgment is passed, the court to which commitment is made may, with a view to obtain the evidence at the trial or evidence of any person supposed to have been directly or indirectly concerned in privy to such an offence, tender a pardon on the same condition to such person. So this is the power of the committal court. This is the power of the court of session. See, 306 talked about judicial magistrate and CJMs. Alright. It never talked about the court of session. 307 is primarily for the court of session, where the case has been committed. So if the court of sessions during the course of trial believes that with the view of obtaining person of an accomplice, I must grant him pardon, then in those situations, the court of session can resort to section 307. Now I come to section 308. No, wait. I will stop section 308 for now. I'll just tell you about a few nuances. See, nobody will ask you the nuances, but especially not in exam, but it is a very curious exercise that you can, of course, talk with your friends and just come to a conclusion, just to check their legal awareness regarding these type of topics. So I'll just answer you in a question and answer form. Can court grant pardon to an accused on his request? The answer to that is, see, accused generally should not directly request the court. It is always the prosecution agency who should sponsor the accused. Alright, that is, the prosecution should think, yes, that this person has committed, he is least guilty, and I think that the honorable judge should grant him pardon. So generally it is not the accused who should make such a request. Then another question comes, so can the court, acting on the request of the accused or suo moto, can grant pardon to an accused person even though it is not sponsored by the prosecution agency? So the answer lies that it is an improper exercise. The answer is that it is improper, that it is against the rules of practice. It is not illegal. So keep the terminologies in your head, and it is very important that you remember it. Such grant of pardon, either suo moto or on the request of the accused, where the person has not at all been sponsored by the public prosecutor or the prosecution agency, is not at all illegal. It is not at all illegal, but it may be improper. Alright, so because it is going against the general rule. General rule is that generally the judges have to act impartial, and it is for the prosecution to sponsor such a person, and after that the court considers the request and then it decides it may or may not grant pardon. So order can be said to be improper. It affects the propriety, but it does not affect the legality. The order is legal, but it can be said to be improper. And this point of this contention was raised, this issue came for the first time in Pascal Fernandez versus State of Maharashtra. So there were some guidelines that were held, that the powers of judge who grants pardon are not circumscribed by any condition.
except one, that the action for granting pardon must be with a view of obtaining evidence of any person supposed to have been directly or indirectly concerned in or privy to an offence. The pardon so tendered is also on the condition of his making a full and true disclosure of the whole circumstances within his knowledge relating to the offence and to every other person concerned, whether as a principal or abettor. The disclosure must be complete as to himself and as to any other person concerned as a principal or abettor. There is no provision for recording of reasons for doing so, nor is the special judge required to furnish a copy to an accused. This is strictly speaking in the terms of special judge. Pascal Fernandez was primarily referring to the provisions of the old code. So Parliament, after looking at this judgment, actually recorded a requirement that judges will need to record the reasons for granting pardon, and what it would also need, that it would also furnish such a copy to an accused if he demands it. Because the Supreme Court in Pascal Fernandez held so the Parliament thought, no, this provision is necessary, we should incorporate it. But the law of Pascal Fernandez still holds the field, and as far as 2020, this law is still reiterated. Alright, ऐसा मत समझ लीजिएगा कि मान लीजिए कि हमारी जो CRPC है, मान लीजिए नई CRPC आ गई, CRPC 2020 आ गई, और CRPC 1973 के जितने भी प्रोविजन थे वो उसमें से कुछ सेक्शन नंबर चेंज हो गया और वो 2020 में आ गए, तो उस पर नया लॉ नहीं लगेगा, उस पर वही लॉ चलेगा जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले हेल्ड किया था. इसीलिए जो 1898 की जो CRPC थी उसी के प्रोविजंस 1973 की CRPC पे भी लग रहे हैं. उसी का लॉ और उसकी जो प्रैक्टिस है वो भी वैसे ही चल रही है जब तक सेक्शन मोर और लेस सेम है. जब सेक्शन बहुत radically alter हो जाता है, then we can say that there is a departure from the old position, which you can easily understand after perusing the judgment of the Supreme Court on that point and looking at the statutory provision. But when the statutory provision of the old code and the new code are exactly the same, and in material they are exactly the same, there is material similarity between them, then in those situations the law of the Supreme Court will still hold field. And this is why even if you look today, you will find the High Courts and the Supreme Court referring to the judgments of 1898 CRPC, even though strictly speaking the CRPC which we use today is that of 1973. Alright, and the reason is simple. The reason is that law still holds good because the very provision that was in the old act is reproduced as it is, or reproduced with material similarity in the new code. Alright, that is why these things are there. That is why you have to also refer to the old judgments. The second point is, in Pascal Fernandez it was held that there is no doubt that the section is enabling in nature, and it is wide enough to enable the special judge to tender a pardon to any person who is supposed to have been directly or indirectly concerned in a private to an offence. So this includes a person arraigned before him, but it may be possible to tender a pardon to a person not so arraigned. The power so conferred can be exercised at any time after the case is received for trial and before its conclusion. So before the conclusion of the trial you can grant pardon. So you know the upper limit of that. That before the trial is concluded, you can grant pardon, but not after that. Supreme Court further said in Pascal Fernandez that there is nothing in the language of the section to show that the special judge must be moved by the prosecution. Alright, Supreme Court very categorically said, and even if you peruse section 306 or 307, you will not find such a provision that the accused has to be sponsored by the prosecution. And the Supreme Court noted the very thing in the old CRPC as well, that there is nothing in the language to show that the special judge must be moved by the prosecution. He may consider an offer by an accused in this case. The action therefore was not outside the jurisdiction of the special judge. In this case what happened was that the accused applied for grant of pardon and the special judge agreed to it. Alright, so वो जो issue हम लोग deal कर रहे हैं ना कि accused की request पे pardon दिया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, even though is not sponsored by the prosecution agency. तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑर्डर ऐसा ग्रांट इलीगल नहीं है क्योंकि सेक्शन का नहीं रिक्वायर करता, ऊपर से उसके जुरिडिक्शन के अंदर भी आता है.
ठीक है, इट इज नॉट एन इम्प्रॉपर एक्सरसाइज ऑफ जुरिसडिक्शन। पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बिफोर स्पेशल जज एक्ट्स टू टेंडर अ पार्डन ही मस्ट ऑफ कोर्स नो द नेचर ऑफ द एविडेंस द पर्सन सीकिंग कंडीशनल पार्डन इज लाइकली टू गिव, द नेचर ऑफ हिज कंप्लिसिटी। सो फर्स्ट ही सी द नेचर ऑफ द एविडेंस, किस तरीके का, कितना इंपॉर्टेंट वैल्यू है उसके एविडेंस की। दूसरी चीज देखेगा नेचर ऑफ हिज कॉम्प्लिसिटी, कि कितना इन्वॉल्व था वो ऑफेंस में। तीसरी चीज देखेगा द डिग्री ऑफ हिज कल्पेबिलिटी, कि उसकी जो क्राइम किया है उसके लिए वो कितना किस हद तक दोषी है वो इन रिलेशन टू सच ऑफेंस, एंड इन रिलेशन टू द को अक्यूज्ड। ये सारी चीजें देखेगा कि अपने से लेके कल्पेबिलिटी उसकी कितनी है और को अक्यूज्ड को लेके कितनी है। सो क्या 3 क्राइटेरिया होंगे कि नेचर ऑफ हिज कॉम्प्लिसिटी, कितना इन्वॉल्व था ऑफेंस में, डिग्री ऑफ हिज कल्पेबिलिटी, ठीक है, और नेचर ऑफ द एविडेंस सच पर्सन सीक्स टू गिव। पता चला उसका एविडेंस ट्रिवियल इन नेचर है, पर आपने कुछ जानता नहीं, कुछ पहचानता नहीं, आपने उसे पार्डन दे दिया, इवन दो ही वाज गिल्टी ऑफ अ हीनियस ऑफेंस, ना उसके एविडेंस का कोई फायदा हुआ, ना कोई एडिशनल पर्सन कन्विक्ट हो पाए। तो इन दैट सिचुएशन यू शुड नॉट गिव अ पार्डन टू सच अ पर्सन, दिस इज अ कंडीशनल पार्डन। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनरली यू शुड सी दीज थिंग्स। इट इज द ड्यूटी ऑफ द मैजिस्ट्रेट टू बी कॉशियस एज टू whom they admit to give evidence as approvers, कि आप कॉशियस रहें, and they should carefully inquire as to what extent the approver is mixed up with the transaction and if he is an accomplice into the extent of his guilt। तो कितना इन्वॉल्व रहा ट्रांजैक्शन में, कितनी उसकी गिल्ट है, ये सारी चीजें देखनी चाहिए। इंग्लिश लॉ में और इन इंग्लिश लॉ इन प्रैक्टिस में 3 चीजें होती हैं जनरली। A, to omit a proposed approver from his indictment, B, to take his plea of guilty on arraignment, C, to offer no evidence and permit his acquittal, or D, to enter a nolle prosequi. It is a nolle prosequi is a formal notice of abandonment by plaintiff or a prosecutor of all or part of the suit। तो ये इंग्लिश लॉ में ये 4 चीजें होती हैं कि चाहे तो वो ओमिट कर दे अप्रूवर को फ्रॉम इंडिक्टमेंट में, और या वो उसकी प्ली ऑफ गिल्ट ले ले ऑन अरेंजमेंट, या वो क्या कर दे इंग्लिश लॉ एंड प्रैक्टिस में प्ली ऑफ गिल्ट एडमिट कर ले। तीसरी चीज वो क्या कर सकता है कि अगर उसकी कोई एविडेंस नहीं है उसके खिलाफ तो उसका अक्विट कर दे, या इंटर प्ली ऑफ nolle prosequi। So nolle prosequi is a formal notice of abandonment by a plaintiff or prosecutor for all or part of the suit, कि वो पूरा वो अबैंडन करना चाहता है सूट। तो ये nolle prosequi की प्ली काफी कुछ आपकी मिलती जुलती है विड्रॉल ऑफ द प्रोसिक्यूशन की, जो सेक्शन 321 में होता है क्रिमिनल केसेस में बता रहा हूँ। तो ये तो इंग्लिश लॉ एंड प्रैक्टिस में था, लेकिन इंडिया में क्या है? इंडिया में क्या होता है कि जब टेंडर ऑफ पार्डन होता है तो वहां पे वो कंडीशनल नेचर होता है, उसका फुल डिस्क्लोजर चाहिए। तो कोर्ट्स को ऐसे क्या कहते हैं कि अक्यूज्ड को मेक श्योर कर लेना चाहिए कि जिसको वो पार्डन टेंडर कर रहा है वो एज अ विटनेस एग्जामिन हो केस में, और वो भी देखे कि जो टेस्टिमनी है, जो अप्रूवर की जो टेस्टिमनी है, उसका नेचर ऐसा है कि क्या वो एडवांस करेंगे इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। दिस इज ऑल्सो अ वेरी रेलेवेंट क्राइटेरिया। तो स्पेशल जज को जब पार्डन टेंडर करना होता है तो उसके पास ऐसा मटेरियल होना चाहिए टू शो दैट द नेचर ऑफ टेस्टिमनी इज सच that the approver is likely to advance the interest of justice. Ordinarily, it is for a prosecution to ask for a particular accused out of several who may be tendered a pardon. क्योंकि prosecution के पास evidence होता है, वो सारी चीजें देख ली होती हैं, वो पहले ही उनका एग्जामिनेशन हो चुका होता है, 161 का एग्जामिनेशन होता है, वो फिर बाकी भी एग्जामिनेशन 164 में होते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट उनके पास होते हैं। तो वो सारा देखने के बाद उनको लगता है कि नहीं, इसकी टेस्टिमनी सबसे, मान लीजिए 4 अकम्प्लिस हैं, उनमें से एक की टेस्टिमनी उन्हें सबसे इंपॉर्टेंट लगती है और वो सोचते हैं ये लीस्ट गिल्टी है, इसको पार्डन दिलवा दें। तो वो उस पोजीशन में ज़्यादा बेहतर तरीके से स्पॉन्सर करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। स्पेशल जज भी अपनी जानकारी में ऐसा कर सकता है, लेकिन उसको कोर्ट कहता है ये इम्प्रॉपर है, इलीगल नहीं है, इम्प्रॉपर है, प्रॉपराइटी को अफेक्ट करता है, लीगैलिटी को नहीं। सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा even where the accused directly applies to the special judge, he must first refer the request to the prosecuting agency। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये बोला था कि अक्यूज्ड को अगर पार्डन के लिए अप्लाई करना है
तो स्पेशल जज से भी पहले उसको प्रोसिक्यूशन एजेंसी को अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो जनरली ये, क्योंकि स्पेशल जज कोई डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन नहीं है, इट इज नॉट इनकम्बेंट अपॉन हिम टू कम डाउन एज अ वेरिटेबल डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। इट इज फॉर द प्रोसिक्यूशन एजेंसी टू सी कि किसका एविडेंस ज्यादा है। अब पता चला प्रोसिक्यूशन एक ही विटनेस, एक ही पर्सन के खिलाफ एविडेंस जुटा रही थी क्योंकि उसको सबसे ज्यादा मटेरियल केस उसके खिलाफ लगा, then I come to your point number 6. The power which the special judge exercises is not on his own behalf but on the behalf of the prosecuting agency and must therefore be exercised only where the prosecution joins the tendering of pardon because it does not need approver's testimony. होता क्या है कि जो स्पेशल जज जो पावर एक्सरसाइज कर रहा है ना, क्योंकि कंडीशनल पार्डन है, इसमें कंडीशन ही क्या लगाई गई कि तुम अपना एविडेंस दोगे सारी इन्वॉल्वमेंट का, कि क्या क्या सर्कमस्टेंसेस है, सच्ची तरीके से सारी चीजें बताओगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये पावर स्पेशल जज अपने बिहाफ पे नहीं, ये प्रोसिक्यूशन के बिहाफ पे एक्सरसाइज कर रहा है। बेनिफिट तो ये प्रोसिक्यूशन का ही होगा ना, इससे प्रोसिक्यूशन का केस मजबूत होगा। तो कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जनरली क्या करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को प्रोसिक्यूशन को ही स्पॉन्सर करना चाहिए, क्योंकि प्रोसिक्यूशन इज द बेस्ट जज ऑफ इट्स ओन इंटरेस्ट, है ना। सो सुप्रीम कोर्ट सेड दैट पावर जो ये एक्सरसाइज करता है टेंडरिंग ऑफ पार्डन की, ये प्रोसिक्यूशन एजेंसी के बिहाफ पे करता है क्योंकि उसके बेनिफिट में करता है। तो ये जनरली तब होना चाहिए व्हेन द प्रोसिक्यूशन एजेंसी इटसेल्फ जॉइन्स इन टेंडरिंग ऑफ पार्डन। ऑलराइट, so it is very essential that the prosecution agency itself joins tendering of pardon, क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन हो गई जब उसे अप्रूवर की टेस्टिमनी की जरूरत नहीं है, उसका केस ऑटोमेटिकली मजबूत है, तो आपने जबरदस्ती एक गिल्टी इंसान को छोड़ दिया, है ना, ऐसी सिचुएशन आ सकती है। टू अवॉइड दैट लैप्स, मान लीजिए प्रोसिक्यूशन ने बहुत अच्छा क्लिंचिंग एविडेंस सबके खिलाफ जुटा के रखा था, अब आपने एक को पार्डन दे दिया, अब प्रोसिक्यूशन को लगेगा अरे यार हमारे इंटरेस्ट सफर कर गए क्योंकि हम तो चारों को पनिश करवा सकते थे, पर उनमें से एक को जज साहब ने पार्डन दे दिया, या एक या दो को दे दिया या तीन को दे दिया, डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो। तो ये जो सिचुएशन है काफी हर्ट कर सकती है प्रोसिक्यूशन को। इसीलिए बोला जाता है कि प्रोसिक्यूशन इज द बेस्ट जज ऑफ हिज इंटरेस्ट, और जनरली क्या होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को प्रोसिक्यूशन द्वारा स्पॉन्सर होना चाहिए। ऑलराइट, सो इट इज फॉर द प्रोसिक्यूशन टू जनरली स्पॉन्सर। ध्यान रखिए, अक्यूज की रिक्वेस्ट पे अगर पार्डन दे दिया, इलीगल नहीं है, इम्प्रॉपर है। सो द प्रॉपर कोर्स फॉर द स्पेशल जज इज टू आस्क फॉर अ स्टेटमेंट फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन ऑन द अक्यूज्ड एंड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रिजनर। पहले प्रोसिक्यूशन से पूछे और फिर रिक्वेस्ट जो है अक्यूज्ड की या प्रिजनर की, उसको ध्यान में रखे। इफ द प्रोसिक्यूशन थिंक्स दैट द टेंडर ऑफ पार्डन विल बी इन इंटरेस्ट ऑफ अ सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन of the other offenders whose conviction is not easy without the approval of testimony, it will agree to the grant of pardon. All right, so if the prosecution thinks that the tender of pardon will be in interest of a successful prosecution, then only it should agree to the grant of pardon. ठीक है, तो मान लीजिए मैं प्रोसिक्यूशन एजेंसी हूँ, आप जज हैं। ऑलराइट, अभी अपने आप को जज की पोजीशन रखिए। अब ऐसे केस में क्या हो सकता है कि अक्यूज ने मान लीजिए अप्लाई किया आपको पार्डन के लिए, आपने सेक्शन देखा, आपने अपनी पावर्स एग्जामिन की, आपने देखा कि नहीं यार कोई मेरे ऊपर कोई बाउंडेशन तो नहीं है, मैं पार्डन ग्रांट कर देता हूँ। आपका ऑर्डर इलीगल नहीं है, इट्स नॉट एट ऑल इलीगल फॉर द ग्रांट ऑफ पार्डन, बट इम्प्रॉपर है। इसमें प्रॉपर कोर्स एज अ जज आपको क्या करना चाहिए था, मैं प्रोसिक्यूशन हूं ना, तो आपको मुझसे एक बार पूछना चाहिए था कि क्या आपके पास ऐसा एविडेंस है कि ये जो डिफेंस के जितने भी लोग आ रहे हैं, जो अक्यूज्ड हैं, इन सबको आप कन्विक्ट करा पाएंगे? क्या इसमें अप्रूवर की टेस्टिमनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या नहीं? क्या ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे बिना टेंडर ऑफ पार्डन के और बिना अप्रूवर की टेस्टिमनी के आपका प्रोसिक्यूशन शायद सक्सेसफुल ना हो पाए दूसरे ऑफेंडर्स के खिलाफ जिनको आप उस केस में कन्विक्ट करवाना चाहते हैं?
या वो आसान नहीं होगा ऐसे केस में। तो ये चीजें आपको मुझसे पूछनी चाहिए थी, लेकिन आपने नहीं पूछी, आपने सुमो मोटो एक्सरसाइज कर दिया, तो इस केस में क्या हो जाएगा, वो इम्प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन आई रिटरेट, प्रोसिक्यूशन से पूछना चाहिए कि क्या टेंडर ऑफ पार्डन सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन के इंटरेस्ट में होगा या नहीं होगा, और the other offenders whose conviction is not easy without the approver's testimony, and for that purpose whether the tender of pardon is required or not. Even though accused is applied before you, you should always ask for these things. So the propriety of the order of the special judge to grant pardon suo moto is the central point. It is not illegal but improper. अगर वो suo moto grant कर देता है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि स्पेशल जज must not take upon himself the task of determining the propriety of tendering a pardon without having the view and support of the public prosecutors. Judges and magistrates ought to generally avoid the grant of pardon suo moto or at the request of the accused without the view of the prosecution. Judges ought to remain aloof in these proceedings. ठीक है, अच्छा, aloof क्यों रहना चाहिए? aloof इसलिए रहना चाहिए because it is primarily the domain of the prosecution to conduct the prosecution. तो आप मटेरियली उनके केस से इंटरफेयर ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वरना क्या होगा ना, प्रोसिक्यूशन का पूरा पर्पस डिफीट हो जाएगा। मैं मान लीजिए जिस अप्रूवर को आप पार्डन देने जा रहे हैं, मेरे पास उसके खिलाफ बहुत अच्छा एविडेंस है, मुझे किसी भी अप्रूवर टेस्टिमनी की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने पार्डन दे दिया तो वो एक गिल्टी इंसान था जो लॉ के प्रोसेस से छूट जाएगा। तो ऐसा आपको नहीं होने देना है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो इम्प्रॉपर है और जनरली अवॉइड करना चाहिए ऐसा कोर्स। तो इवन दो इस केस में क्या हुआ था मैं आपको बता देता हूँ। अक्यूज्ड की रिक्वेस्ट पे स्पेशल जज ने पार्डन की पावर एक्सरसाइज कर दी और अपने ओन मोशन पे की थी, बिना प्रोसिक्यूशन का व्यू लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इम्प्रॉपर चीज़ें हैं, लेकिन क्या हुआ था फिर आगे चल के जो प्रोसिक्यूशन था, प्रोसिक्यूशन ने कह दिया हाई कोर्ट के भी सामने और ट्रायल कोर्ट के भी सामने कि नहीं नहीं नहीं, आपने जो पार्डन दिया है वो एकदम ठीक दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इवन तो प्रोसिक्यूशन ने आपको पार्डन ग्रांट करने के बाद सपोर्ट दे दिया है कि हाँ ठीक है ये बात ठीक थी, लेकिन जनरली हम आपको वार्निंग दे रहे हैं सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को कि ये जो पावर्स हैं ये जनरली सुo moto या अक्यूज की रिक्वेस्ट पे नहीं एक्सरसाइज होनी है, ये पावर्स हमेशा प्रोसिक्यूशन का व्यू लेने के बाद ही एक्सरसाइज होनी है। और प्रोसिक्यूशन का क्या व्यू है ये मैंने आपको बता दिया। ऑलराइट, कि इंटरेस्ट ऑफ इन द इंटरेस्ट ऑफ द सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, या अप्रूवर की टेस्टिमनी ऐसे नेचर की है कि वो बाकी के ऑफेंडर्स को कन्विक्ट करवा सकती है और जिनका कन्विक्शन बिना अप्रूवर की टेस्टिमनी के आसान नहीं होगा या इम्पॉसिबल भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। दूसरी एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये मेन पॉइंट खत्म हो गया आपका पास्कल फर्नांडिस का, ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इकबाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में एक पॉइंट बोला गया था कि जब मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है तो उसको 2 बार एज अ विटनेस एग्जामिन होना होगा, once in the court of magistrate and again in the second time in the court of special judge to whom the magistrate sends the case for trial. But on the other hand, if the charge sheet is filed in the court of special judge itself and then the approver is examined only once, then this is discriminatory. ये contention था कि contention मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये देखिए ये सब फालतू के पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं आपकी एकेडमिक्स के लिए मैं बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये प्रोविजन कवर कराने का नहीं सोचा था। ना ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये सारी चीज़ें बाल की खाल निकालने वाली बातें होती हैं, तो ये कंटेंशन चलते भी नहीं है। किसी ने एक कंटेंशन लिया गया था सुप्रीम कोर्ट के सामने इकबाल सिंह में कि जब 306 में पार्डन होता है तो 2 बार एग्जामिनेशन होता है, एक बार मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में, उसके बाद कमिटेड जब केस कमिट हो जाता है प्रॉपर कोर्ट में, चाहे कोर्ट ऑफ सेशन या स्पेशल जज को, तो वहाँ पे भी एग्जामिनेशन होता है। लेकिन जब चार्जशीट मान लीजिए स्पेशल जज की कोर्ट में ही फाइल हुई है और वो ट्राई करते हुए भी उसने पार्डन दिया है, तब ऐसी सिचुएशन में अप्रूवर का एग्जामिनेशन सिर्फ 1 बार होता है, तो ये तो डिस्क्रिमिनेटरी है, आर्टिकल 14 का वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्डन की स्कीम देखते हुए
इतना रिक्वायरमेंट है कि उसको एज अ विटनेस एग्जामिन होना चाहिए, ठीक है, एट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्रोसीडिंग। लेकिन जहां पे स्पेशल जज कॉग्निजेंस लेता है तो द ओकेजन ऑफ एग्जामिनिंग द अप्रूवर एज अ विटनेस सिर्फ एक बार अराइज होती है। ये सच है कि यहाँ पे प्रीवियस एविडेंस अप्रूवर का नहीं होता है विच हिज एविडेंस एट द ट्रायल कुड बी टेस्टेड। तो वो मतलब प्रीवियस प्रोसीडिंग में एविडेंस नहीं देता है, वो डायरेक्टली सिर्फ एक बार देता है जब स्पेशल जज के सामने प्रोसीडिंग होती है। लेकिन बाय दैट ओनली वो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं हो जाता, दैट वो डिस्क्रिमिनेटरी प्रोसेस नहीं हो जाता। कोर्ट बस इतना रिक्वायर करता है कि उसका एग्जामिनेशन होना चाहिए, दैट्स इट। सो मेरली बिकॉज उसका 2 बार एग्जामिनेशन नहीं हुआ, जैसे मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में हो रहा था, फिर मैजिस्ट्रेट की कोर्ट के बाद केस कमिट हुआ तो फिर कोर्ट ऑफ सेशन में फिर उसका एग्जामिनेशन हुआ, 2 बार नहीं हुआ, तो ये वो आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं हो जाता। दैट बाय इटसेल्फ डजंट मेक द प्रोसेस डिस्क्रिमिनेटरी, ठीक है। ये ओनली उस सिचुएशन, ओनली एक रिक्वायरमेंट है कि उसका एग्जामिनेशन होना चाहिए। जब स्पेशल कोर्ट्स, जब जो स्पेशल कोर्ट्स एक्ट होती हैं, जब उसमें लेजिस्लेचर ने कोई रिक्वायरमेंट नहीं बनाई है बार बार एग्जामिनेशन की, उसी ने कॉग्निजेंस लेके अगर पार्डन दे दिया है और उसको केस कमिट करने की जरूरत नहीं है, तो सिंगल एग्जामिनेशन हो रहा है, तो कहाँ से डिस्क्रिमिनेटरी हो गया? ऑलराइट, तो ऐसे केस में वो आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है। स्पेशल जज इन दैट केस कैन ओनली मेक अ सिंगल एग्जामिनेशन कीपिंग इन माइंड द वेल एस्टेब्लिश्ड टेस्ट फॉर एप्रिसिएशन ऑफ अकम्प्लिस एविडेंस। ये एक बात थी। तो जो इकबाल सिंह का केस था, पहले क्या वो होता था ना, जो पार्डन का प्रोविजन था ये 337 में हुआ करता था 1898 की सीआरपीसी में। अब ये होता है 306 में और 307 हमारी नई सीआरपीसी में। सेम मतलब पैरीमेटीरियल सब कुछ एकदम सेम था, कोई डिफरेंस नहीं था, सिवाय उसके कि पहले ये था कि पहले सीजीएम और जो डीएम होते थे ये एक ही चीज़ हुआ करते थे। उसके बाद जुडिशियल पावर्स और ये सेपरेट हुई। 1898 की कोड में एक होता था आपका डीएम जुडिशियल, एक होता था आपका डीएम एग्जीक्यूटिव। तो वो स्टेट गवर्नमेंट के होता था, दूसरा हाईकोर्ट को डायरेक्टली रिपोर्ट करता था, वो जुडिशियल पावर एक्सरसाइज करता था। यहाँ पे क्या हो गया, जब नई सीआरपीसी बनी तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, उसको ध्यान में रखते हुए जुडिशियल पावर्स एग्जीक्यूटिव से अलग कर दी और सीजीएम एस्टैब्लिश हुआ और डीएम एकदम अलग हो गया, प्योरली एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट बन गया, ठीक है। ऐसी चीज़ हुई थी। तो पहले ये था कि जनरली एक ही आदमी में क्लब्ड होती थी, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू द सबऑर्डिनेशन ऑफ द सेशंस जज। लेकिन 337 जो 1898 की सीआरपीसी थी, उसमें आपका सीजीएम की जगह डीएम बोला जाता था, ठीक है। ये सारी कुछ टर्मिनोलॉजीज थी। पैरी मटेरियल जितना जो मटेरियल है उसका जो सिमिलैरिटी है वो बाकी सब कुछ सेम था, बस अथॉरिटीज़ का नाम अलग हो जाता था और कुछ छोटी मोटी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स थी जो इसमें हैं उसमें नहीं थी। पर पार्डन देने का तरीका, पार्डन के प्रिंसिपल्स, पार्डन किन शर्तों पे दिया जाएगा, वो सारी चीज़ें सेम थी, ठीक है। तो लॉ एज फार एज दैट प्रोविजन अप्लाइज स्टिल अप्लाइज इन दी सिचुएशन। तो एक सवाल उठता है कि क्या केस कमिट होने के बाद, आपने देखा होगा 306 में लिखा है कि आपको पार्डन देने के बाद केस कमिट करना पड़ता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन इमेजिन करिए जहाँ पे मैजिस्ट्रेट ने, सीजीएम ने मान लीजिए केस कमिट कर दिया कोर्ट ऑफ सेशन को। अब 306 में उसके पास तो पार्डन देने की पावर है, तो क्या केस कमिट करने के बाद वो पार्डन दे सकता है? द आंसर इज नो। ये ए देवेंद्रन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में 1997 में बहुत आराम से आंसर कर दिया गया था। 21 अक्टूबर 1997 को डिसाइड हुआ था ये, AIR 1998 सुप्रीम कोर्ट 2821 में, पेज नंबर 2821 में रिपोर्ट हुआ था। डिसाइड हुआ 1997 में, रिपोर्ट हुआ 1998 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बोला कि एक कंटेंशन इसमें लिया गया था कि जो कन्विक्शन और सेंटेंस है उसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो 465 ऑफ द कोड है उसको ध्यान में रखते हुए, जो नई सीआरपीसी में सेक्शन 465 है ना इरेगुलरिटीज को क्योर करने के लिए, उसमें बोला कि वहाँ पे फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 465 ऑफ सीआरपीसी इज अ रेसिड्यूरी सेक्शन intended to cure any error, omission or irregularity committed by a court of competent jurisdiction in course of a trial through accident or inadvertence, मतलब ध्यान नहीं दिया,
or even illegality consisting in the infraction of the provisions of law. The sole object of the section is to secure justice by preventing the invalidation of a trial already held on the ground of technical or procedural breaches of any provision in the CRPC causing no prejudice to the accused. जैसे आपको पता है 2 ही टेस्ट हैं उसके लिए, prejudice to the accused और failure of justice. लेकिन 465 तब, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं, 465 तब बिल्कुल नहीं अप्लाई करता जब कोई भी कोर्ट ऐसा ऑर्डर पास करता है जिसमें वो भली भांति जानता है कि उसके पास जुरिडिक्शन ही नहीं है ऐसा करने का. ऑलराइट, मान लीजिए मैजिस्ट्रेट अच्छे से जानता है कि वो पार्डन नहीं दे सकता इन अ गिवन केस, पर पार्डन दे देता है. तो मैं आपको जब आई थिंक सेक्शन 460 बता रहा था, तो 460 का क्लॉज जी बोलता है कि अगर टेंडर ऑफ पार्डन दे दिया है आपने तो वो क्योरेबल इरेगुलरिटी है. लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी, देखिए सारी चीजें गुड फेथ में होनी चाहिए, एंड नथिंग इज टू बी सेड टू बी डन इन गुड फेथ इफ इट्स नॉट डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन. तो यही मैंने बोला था, अगर मैजिस्ट्रेट की आंखें खुली हुई हैं, वो देखता है कि वो पार्डन नहीं दे सकता है, उसके बाद भी दे रहा है, या इनफैक्ट इन सारी चीजों में जितनी भी चीजें वो कर रहा है जो क्योरेबल इरेगुलरिटीज है, पर गुड फेथ में उसने नहीं किया, तो वो क्योर नहीं करेंगे. ये सारे कंटेंशन कोर्ट के सामने उठाए गए थे. कोर्ट ने सीधे बोला कि जब केस कमिट हो जाता है कोर्ट ऑफ सेशंस के पास, तो वहां पे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का पार्डन देने का या किसी भी और काम करने का जो पॉइंट है वो खत्म हो जाता है. ही कैन नॉट एक्सरसाइज एनी पावर. वो सिर्फ सेशंस जज है अब उस सिचुएशन में जो 307 के प्रोविजन से पार्डन दे सकता है, नॉट चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, इवन दो उसके पास, क्योंकि पावर वहीं खत्म हो गई जहां पे केस कोर्ट ऑफ सेशंस के पास चला गया. जैसे ही उसने केस कोर्ट ऑफ सेशंस को कमिट किया, ही डज नॉट हैव अ पावर टू ग्रांट पार्डन. अगर तब पार्डन चाहिए ऐसे अकम्प्लिस को या अक्यूज्ड को, तो उसको 307 के प्रोविजन से चलना होगा, और वो उसी वही कोर्ट दे सकता है जिसको केस कमिट हुआ है, इन दिस केस कोर्ट ऑफ सेशन. तो अगर केस कमिटल होने के बाद चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट पार्डन देता है, नोइंग फुली वेल कि उसके पास कोई जुरिडिक्शन नहीं है, ये पेटेंट इरेगुलरिटी, दिस इज अ पेटेंट डिफेक्ट ऑफ जुरिडिक्शन. ठीक है, ये ऐसा डिफेक्ट है जिसको क्योर नहीं किया जा सकता, गुड फेथ में नहीं कहा जा सकता. तो यहाँ पे 465 भी नहीं अप्लाई होता है, ना आपका 461 का जी अप्लाई होता है. 465 भी नहीं अप्लाई करेगा और ना सेक्शन 460 का क्लॉज जी अप्लाई करेगा, ये दोनों ही नहीं अप्लाई करेगा. तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये जो काम जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब ने किया है ना, केस कमिट हो गया कोर्ट ऑफ सेशन के बाद, उन्होंने उसके बाद अपनी मर्जी से पार्डन दे दिया, ये मियर इरेगुलरिटी नहीं है, ये क्या कहते हैं, ये टोटल लैक ऑफ जुरिडिक्शन है. और कॉन्सिक्वेंटली द फॉलो अप एक्शन, ये जो मैजिस्ट्रेट ने जो काम किया है ये विदाउट जुरिडिक्शन है, तो इसको कंसिडरेशन में नहीं लिया जा सकता. तो इसलिए ये जितने भी ऑब्जेक्शन आप जो लर्नेड काउंसिल जो स्टेट की तरफ से ले रहे हैं, ये रिजेक्ट होने चाहिए. यही ऑब्जेक्शन लिए थे कि कन्विक्शन से इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और क्योंकि जो पार्डन था हालांकि इरेगुलर था, पर 461 का जी और सेक्शन 465 इसको क्योर कर लेता है, बचा लेता है. कोर्ट ने कहा नहीं, केस कमिट होने के बाद सीजेएम पार्डन नहीं दे सकते, ये पेटेंट डिफेक्ट ऑफ जुरिडिक्शन है. हाँ, कोर्ट ने ये बोला कि हाँ, इससे हो सकता है कि अक्यूज क्या कहते हैं प्रेजुडिस ना हुआ हो सकता है, लेकिन ये पेटेंट डिफेक्ट ऑफ जुरिडिक्शन है, और अगर पेटेंट डिफेक्ट ऑफ जुरिडिक्शन है, वी कैन नॉट अलाउ इट टू क्योर इन द प्रेजेंट फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस. यहाँ पे सीजेएम पूरी तरीके से अवेयर थे, इट डजंट हैव द jurisdiction to grant pardon after the case has been committed to the court of session. तो जनरली याद रखिएगा, when a case has been committed to the court of session, it is the sessions court alone who has the power to grant pardon. सीजेएम या मैजिस्ट्रेट तब पार्डन नहीं दे सकते उस सिचुएशन में. ठीक है, वो केस कमिट होने से पहले तो दे सकते हैं, तब तो 306 अप्लाई करेगा, लेकिन केस कमिट हो गया तो 307 के प्रोविजन अप्लाई करेंगे, जहाँ पे मैजिस्ट्रेट सीन्स में ही नहीं आते, दे डू नॉट कम इनटू द पिक्चर एट ऑल. तो इस केस में क्या हुआ था ना, ये जो अप्रूवर था उसका जो एविडेंस था, कोर्ट ने बोला कि प्रेजुडिस तो नहीं हुआ है उनको, अक्यूज्ड को, लेकिन क्योंकि पेटेंट डिफेक्ट ऑफ जुरिडिक्शन था फॉर द ग्रांट ऑफ पार्डन, तो ये जो अप्रूवर का एविडेंस है इसको कंसिडर ही नहीं किया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली फाइंडिंग से कोई इंटरफेरेंस नहीं किया, पर उसने ये बोल दिया कि जो अप्रूवर का एविडेंस जो ये जो सीजेएम के फॉल्टी पार्डन के बाद दिया गया है, ये कंसिडरेशन में
हिलाया ही नहीं जा सकता. सुप्रीम कोर्ट सेड, सुप्रीम कोर्ट के वर्ड्स बता देता हूँ. देन अगेन दिस इज नॉट अ केस ऑफ रिवर्सिंग द सेंटेंस और ऑर्डर पास बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन, but it is a case where only a particular item of evidence has been taken out of consideration as the evidence of the so-called approver has been held by us to be not a legal evidence since pardon has been tendered by a court of incompetent jurisdiction. In such a situation, provision of section 465 cannot be attracted at all. It is true all procedures are intended to subserve the ends of justice, and the undue emphasis on mere technicalities which are not vital or important may frustrate the ends of justice. The courts therefore are required to consider the gravity of the irregularity, whether the same has called a failure of justice or not. To tender a pardon by CJM cannot be held to be a mere case of irregularity, nor can it be said that there has been no failure of justice. It is a case of total lack of jurisdiction. Jurisdiction था ही नहीं, total lack. Irregular exercise छोड़ दीजिए, lack ही करते हैं jurisdiction कोई काम करने का. And consequently, the follow-up action on the account of such order of a magistrate without jurisdiction cannot be taken into consideration at all. तो कोर्ट ने बोला आप उस आइटम जो एविडेंस है, जो एग्जिबिट है, you will not take into the consideration, that is all. We are not interfering much, but we are saying there is a patent lack of jurisdiction, so we will not interfere in these realms at all. अब एक सिचुएशन आती है कि क्या अक्यूज ये डिमांड कर सकता है कि जो 306 के सबसेक्शन 4 में जो एग्जामिनेशन होता है अप्रूवर का, वो उसके सामने लिया जाए. प्रैक्टिस में क्या होता है आप देखेंगे, ऐसा एग्जामिनेशन मैजिस्ट्रेट के चेंबर में भी हो जाता है, लेकिन जनरली ओपन कोर्ट में होना चाहिए, लेकिन मैजिस्ट्रेट के चेंबर में भी हो जाए तो वो कोई प्रॉब्लमैटिक चीज़ नहीं होती. तो क्या अक्यूज डिमांड कर सकता है कि इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ 273 मेरे सामने होना चाहिए? तो इसका आंसर रणधीर वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में दिया गया था. ये 7 फरवरी 2000 में डिसाइड किया गया था. उसको सीधे बोल दिया था नहीं, क्योंकि उस स्टेज पे अक्यूज सीन में ही नहीं आता. अक्यूज कब सीन में आएगा? इश्यू ऑफ प्रोसेस के बाद. तो अगर मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन के दौरान या इंक्वायरी के दौरान जब तक अक्यूज को प्रोसेस इशू नहीं दिया गया, प्रोसेस इशू नहीं किया गया है, तो ऐसे केस में पार्डन टेंडर कर दिया गया है, तो क्या अक्यूज ऐसा ऑब्जेक्शन ले सकता है कि मेरे सामने एग्जामिनेशन नहीं हुआ या मुझे क्रॉस एग्जामिन करने का मौका नहीं मिला? तो सीधे बोल लिया कि इसकी कोई नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि अक्यूज का कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है उस सीन तक. ठीक है, अक्यूज डज नॉट कम इनटू द पिक्चर. अगर 202 की सीआरपीसी में आप देखेंगे तो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस तो होता है सेक्शन 202 में भी, व्हेन द कंप्लेंट केस में एग्जामिनेशन कर रहा है. तो क्या उस सिचुएशन में अक्यूज के पास कोई लोकस स्टैंडाई होती है? नहीं होती है. सिमिलरली 306 में जब 306 के सबसेक्शन 4 में जब एग्जामिनेशन हो रहा है तो अक्यूज कैन नॉट इंसिस्ट कि मुझे भी क्या कहते हैं मेरे सामने अप्रूवर का एविडेंस लिया जाए या मुझे क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका दिया जाए, क्योंकि सिंपली रीजन ये है, ये ऑब्जेक्शन इसलिए नहीं अराइज किए जा सकते बिकॉज ही डज नॉट हैव अ लोकस स्टैंडाई एट दैट स्टेज. ये सारी चीज़ें अगर उसे अप्रूवर का एविडेंस तोड़ना है तो ट्रायल के दौरान कर सकता है, नॉट एट द टाइम व्हेन ही इज हैविंग हिज फर्स्ट एग्जामिनेशन. सीआरपीसी में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उस स्टेज पे. इसका रीजन क्या है? एक लाइन में आपको बताना होगा, अक्यूज्ड की उस स्टेज पे कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है. ऑलराइट, सो बी वेरी प्रिसाइज विद दिस टर्म्स. वी कैन सिंपली आंसर इट इन अ सिंगल लाइन. अब आपको पूरा रणधीर वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल पढ़ना पड़ता है पूरा समझने के लिए, पर प्रिंसिपल कितना छोटा सा है. अप्रूवर की एट दैट स्टेज द अक्यूज पर्सन डज नॉट हैव अ लोकस स्टैंडाई, सो ही कैन नॉट डिमांड कि मेरे सामने क्या कहते हैं एग्जामिन किया जाए या मुझे क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका दिया जाए एट द टाइम व्हेन हिज फर्स्ट एग्जामिनेशन इज बीइंग टेकन ऑफ द अप्रूवर अंडर सेक्शन 306 ऑफ सेक्शन 4. तो वहाँ पे उसके पास क्योंकि ऐसा कोई लोकस स्टैंडर्ड नहीं है तो वो उस स्टेज पे आता ही नहीं है सीन पे, तो ही इज़ नॉट अलाउड टू रेज दीज काइंड ऑफ ऑब्जेक्शन एट द लेटर स्टेज. ठीक है, कि वो आगे चल के बोले कि मुझे मेरे सामने नहीं लिया गया था एविडेंस और मुझे क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका नहीं दिया गया था, तो ऐसे में ये एविडेंस बेकार है. ये ऑब्जेक्शंस नहीं चलेंगे. आपको दिक्कत है अप्रूवर के एविडेंस पे, ट्रायल पे आप उसे क्रॉस एग्जामिन भी कर सकते हो और जो आपको उसकी क्रेडिबिलिटी इम्पीच करनी है आप कर लीजिए. लेकिन उसका जब 306 के सबसेक्शन 4 में एग्जामिनेशन हो रहा है तो ना ही वो अक्यूज के सामने अक्यूज के सामने होने की जरूरत है और ना ही वो उसके अगेन उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन करने की रिक्वायरमेंट है. बोथ सिचुएशंस डू नॉट एग्जिस्ट. सो नाइदर द रिक्वायरमेंट ऑफ
presence of the accused is there under 306 of section 4, neither the accused has the right to cross-examine the approver at that stage. Why? He does not have a locus standi at that stage. अब एक केस ले लीजिए सुरेश चंद्र बाहरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का. इसमें बोला गया था रोल ऑफ अप्रूवर इज नॉट इटसेल्फ ओनली द पैरामाउंट कंसिडरेशन, और भी कंसिडरेशन होती है. रोल ऑफ अप्रूवर इन कमीशन ऑफ ऑफेंस इज वन ऑफ देम. ये सारी चीजें आप पूरी टोटलिटी ऑफ द सर्कमस्टेंसेस को देख के ही आप पार्डन ग्रांट करिए. उसका क्राइम में क्या इन्वॉल्वमेंट रहा है, डिग्री ऑफ कल्पेबिलिटी क्या है, ये वन ऑफ मेनी कंसिडरेशंस है, पर बाकी कंसिडरेशन भी होती हैं. तो सुरेश चंद्र बाहरी में सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऑब्जेक्ट ऑफ 306 CRPC is that to allow pardon in a case where heinous offence is alleged to have been committed by several persons, and with the aid of the evidence of the person granted pardon, the offence may be brought home to the rest. The basis of tender of pardon is not the extent of the culpability of the person to whom pardon is granted, but the principle is to prevent the escape of offenders from the punishment in heinous offences for the lack of evidence. So culpability by itself is not the sole criteria, but it is one of the criteria. मेन ऑब्जेक्ट ये है कि हीनियस ऑफेंसेस में जो लोग इन्वॉल्व है वो बाकी लोग जाने ना पाए. देयर कैन बी नो ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द टेंडर ऑफ पार्डन टू एन अकम्प्लिस simply because in his confession he does not implicate himself to the same extent as the other accused, because all that section 306 requires the pardon may be tendered to any person believed to be involved directly or indirectly in or privy to an offense. तो जनरली बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, इन प्रैक्टिस ये देखा जाता है कि जो लीस्ट गिल्टी हो और जिसका एविडेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो उसको दिया जाता है. प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ नहीं है. अब रिवोकेशन ऑफ पार्डन कब हो सकता है? रिवोकेशन ऑफ पार्डन 308 के प्रोविजन से हो सकता है व्हेन पब्लिक प्रोसिक्यूटर सर्टिफाई करता है कि अप्रूवर इज नॉट अबाइडिंग विद द कंडीशंस ऑन विच ही हैज बीन ग्रांटेड पार्डन, that is making full and true disclosure for all facts within his knowledge, or approver is concealing something essential, or is tendering false evidence. इन्हीं तीन चीजों पे पार्डन रिवोक हो सकता है. ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिएगा. जब पार्डन टेंडर होता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है सीआरपीसी के पर्पस के लिए? अक्विटल तो हो नहीं सकता, तो क्या होता है? ये प्रिज्यूम किया जाता है कि वो डिस्चार्ज हो गया. ऑलराइट, ये जो प्रोटेक्शन है पार्डन का, ये उसी सिचुएशंस में रिवोक किया जा सकता है जहां पे वो पार्डन, जिन कंडीशंस में पार्डन ग्रांट हुआ है उससे कंप्लाई नहीं करता है, झूठ बोलता है ट्रायल पे, या फुल एंड फेयर एंड ट्रू डिस्क्लोजर नहीं करता है, या कुछ कंसील करता है अपने एविडेंस में, तभी पार्डन रिवोक हो सकता है. जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर सर्टिफाई करता है और फिर कोर्ट को अलाउ करना होता है. ध्यान रखिएगा, स्टेट अपने साइड से सीधे पार्डन विड्रॉ नहीं कर सकता. यहाँ पे पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सर्टिफाई करना होगा, और कब? जब पहले उसका एग्जामिनेशन हो जाए कोर्ट के अंदर. सो द अप्रूवर हो सकता है अपने स्टेटमेंट से मुकर गया हो जो उसने मैजिस्ट्रेट के सामने दिया हो, और फिर उसके बाद कमिटल कोर्ट में मुकर जाता है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा, या फिर कुछ और उसका टोटली ऑपोजिट कहने लगता है. तो ऐसी सिचुएशन में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को उसको एग्जामिन करने की तो जरूरत है एज अ विटनेस. जब विटनेस एज अ विटनेस वो कोर्ट में एग्जामिन कर लेता है, उसके बाद ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर सर्टिफाई करेगा कि अप्रूवर हैज नॉट कंप्लाइड विद द कंडीशंस ऑफ द पार्डन, और इज विलफुली कंसीलिंग एनीथिंग एसेंशियल, और हैज गिवन अ फॉल्स एविडेंस, और तब 308 का प्रोसीजर फोर्स में आएगा. एंड ओनली देन कैन द पार्डन कैन बी रिवोक, जब ये सारी सिचुएशंस आंसर हो जाती हैं. ये जो व्यू है ये 2010 स्टेट ऑफ महाराष्ट्र अबू सलेम वर्सेस अब्दुल कायूम अंसारी में भी रीइटरेट हुआ था. ये जो लॉ ओरिजिनली जो था ये स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस जगजीत सिंह में हेल्ड हुआ था. अब आपको शॉर्ट में प्रिंसिपल बता देता हूं. 7 प्रिंसिपल हैं इसके. फर्स्ट, द पावर टू ग्रांट पार्डन इज एंजॉयड इनटू 306, 307 ऑफ द कोड. ये एक सब्सटैंशिव पावर है, ये जुडिशियल डिस्क्रेशन पे रेस्ट करती है. Power of the court is not circumscribed by any condition except one. एक ही condition है, that is, the action must be with a view to obtaining evidence of any person who is supposed to have been directly or indirectly concerned in privy to any offence. ये condition है. Third, court has to proceed with great caution and on sufficient grounds recognizing the risk which the grant of pardon involved
with the grant of pardon involved of allowing an offender to escape just punishment at the expense of the other accused. ये रिस्क को भी ध्यान में रखना है कि आप एक गिल्टी पर्सन को छोड़ रहे हैं सिर्फ उसका एविडेंस लेने के लिए, तो ये भी ध्यान में रखिए वो इवन दो इज कन्विक्टिंग अदर, उसके एविडेंस इतना क्रूशियल है कि वो दूसरे गिल्टी अक्यूज्ड को कन्विक्ट करवा दे, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि वो खुद भी गिल्टी है। तो ये कंसिडरेशन दिमाग में रहनी चाहिए कोर्ट के। ऑफ कोर्स दिस इज वन ऑफ द कंसिडरेशन। सीक्रेसी ऑफ द क्राइम एंड पॉसिटी ऑफ एविडेंस solely for the apprehension of the other offenders, recovery of incriminating objects and production of evidence which are otherwise unobtainable might afford reasonable grounds for exercising the power. तो क्राइम सीक्रेट में अगर हुआ है, एविडेंस बहुत कम है, या रिकवरी कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स की रिकवरी करानी है जो इनक्रिमिनेटिंग इन नेचर हैं, या ऐसे एविडेंस जो बिना प्रूवर की हेल्प के नहीं मिल सकते, तो ऐसे केस में ये सही ग्राउंड्स हो सकते हैं कि आप उसको पार्डन टेंडर कर दें। डिस्क्लोजर ऑफ द पर्सन सीकिंग पार्डन मस्ट बी कंप्लीट। वो जो बताए पूरी तरीके से बताए और सच बताए कोर्ट को। वाइल टेंडरिंग पार्डन, कोर्ट शुड मेक एन ऑफर टू द लीस्ट गिल्टी अमंग द सेवरल अक्यूज्ड. The reasons for tendering pardon must be recorded and also about the factum of accepting pardon of the concerned. अच्छा, एक और पॉइंट आता है, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या कोर्ट पार्डन इस बात पे रिवोक कर सकता है कि अक्यूज्ड इन्वेस्टिगेशन से कोऑपरेट नहीं कर रहा? द आंसर इज नो. क्यों इसका आंसर नो है? सिंपली रीजन ये है कि जो 308 है, 308 बोलता है कि आप पार्डन तब रिवोक कर सकते हैं जब वो कुछ कंसील कर रहा हो, या झूठ बोल रहा हो, फॉल्स एविडेंस दे रहा हो, या फुल एंड फेयर डिस्क्लोजर ना कर रहा हो, और जो टेंडरिंग ऑफ पार्डन की जो कंडीशन है उससे कंप्लाई ना कर रहा हो. बट 308 में कहीं भी ये नहीं लिखा कि नॉन कोऑपरेशन विद इन्वेस्टिगेशन इज अ ग्राउंड फॉर रिवोकेशन. ये ग्राउंड लिया गया था डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट वर्सेस राजीव सक्सेना में, दिल्ली हाईकोर्ट के सामने. अभी ये जून का केस है, 2020 का, इसी जून का, आई थिंक 13 या 14 जून को ये डिसाइड हुआ. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला कि नॉन कोऑपरेशन विद द इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस इज नॉट अ ग्राउंड फॉर रिवोकेशन ऑफ पार्डन. ये छोटी सी बात है. नाउ आई जस्ट रीड 308 और आपका जो पार्डन का जितनी भी चीजें हैं दे आर टोटली ओवर. सेक्शन 308 says trial of a person not complying with the conditions of pardon, where in regard to a person who has accepted a tender of pardon under section 306 or 307, the public prosecutor certifies. public prosecutor का सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेशन होना चाहिए. वो क्या बताए? that in his opinion such person has either by willfully concealing anything essential, इसको मार्क करिए, or by giving false evidence not complied with the condition on which tender of pardon was made. यही एसेंस है. दिस इज ऑल द एसेंस फॉर रिवोकेशन ऑफ पार्डन. ये 3 लाइन्स आपको याद रखनी है. आपको पूरा सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं. देखिए, मैं आपको ये जो जिस भी लाइन को बड़े एम्फेसिस से बताऊं या जिस भी वर्ड को बड़े एम्फेसिस से बताऊं, वो की वर्ड्स हैं. दैट यू हैव टू मेंशन, दैट यू हैव टू रिमेंबर. अगर वो आपको याद हो गया, आपको पूरी उस सेक्शन की एसेंस याद रह गई. सो or giving false evidence not complied with the condition on which tender was made, such person may be tried for an offense in respect of which pardon was tendered, or for any other offense which appears to have been guilty in connection with the same matter, and also for giving false evidence. तो आप उसको उस ऑफेंस के लिए भी ट्राई कर सकते हो जिसके लिए आपने उसे पार्डन दिया था, या किसी और ऑफेंस के लिए जिसके लिए आपको लगता है वो गिल्टी है, या फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस. ठीक है, ये सारी चीजों के लिए आप उसे एक साथ भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन सर्टिफिकेशन होना चाहिए. किन ग्राउंड्स पे? दैट ही इज विलफुली कंसीलिंग एनीथिंग एसेंशियल, और हैज बीन गिविंग फॉल्स एविडेंस, और नॉट मेकिंग फुल एंड फेयर डिस्क्लोजर, और एंड हैज नॉट कंप्लाइड विद द कंडीशन ऑन विच टेंडर ऑफ पार्डन वाज मेड, प्रोवाइडेड दैट सच पर्सन शैल नॉट बी जॉइंटली ट्राइड विद अदर अक्यूज्ड. दूसरे अक्यूज के साथ नहीं ट्राई किया जाएगा. ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा. Provided further that person shall not be tried for the offense of giving false evidence except with the sanction of High Court. False evidence के लिए अगर आपको sanction लेनी है तो किससे लेंगे? हाई कोर्ट से.
लेकिन ये किस क्लॉज पे अप्लाई करता है? सिर्फ फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस, फॉर ट्राइंग अ पर्सन। अगर पार्डन रिवोक हो गया इस ग्राउंड पे कि इज विलफुली कंसीलिंग एनीथिंग एसेंशियल एंड कोर्ट वांट्स टू ट्राई, कोर्ट पार्डन रिवोक कर लेता है और फिर उन चीजों पे ट्राई करना चाहता है जिसके लिए उसने उसे पार्डन दिया था, तो उसके लिए सैंक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उसको उस चीज पे ट्राई करना चाहते हैं कि उसने झूठ बोला, फॉल्स एविडेंस दिया, देन यू नीड टू हैव द सैंक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। तब उसके केस में 195 और सेक्शन 340 बिल्कुल भी नहीं अप्लाई करेंगे। ये जो 340 और 195 का रिलेशन है, ये जब मैं आपको आईपीसी में 193 समझाऊंगा तब आपको पूरी स्कोप समझ में आएगा, क्योंकि उसको आइसोलेशन में समझाना बहुत ही गलत बात हो जाएगी, क्योंकि आपको फिर समझ में नहीं आएगा। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजरल प्रोविजन इन दिस सिनेरियो यू हैव टू अंडरस्टैंड द सब्सटैंटिव प्रोविजन। फिर सबसेक्शन 2 आता है, एनी स्टेटमेंट मेड बाय सच पर्सन एक्सेप्टिंग द टेंडर ऑफ पार्डन एंड रिकॉर्डेड बाय अ मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 164 और बाय अ कोर्ट अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ 306 मे बी गिवन इन एविडेंस अगेंस्ट हिम इन सच ट्रायल। तो ये जो जितने भी स्टेटमेंट जो टेंडर ऑफ पार्डन में दिए गए हैं, चाहे वो या और जितने भी स्टेटमेंट जो 164 में रिकॉर्ड हुए हैं मैजिस्ट्रेट के सामने, वो दोनों ही उसके खिलाफ यूज हो सकते हैं एविडेंस पे, व्हेन यू आर ट्राइंग हिम ऑन द ग्राउंड, उन ग्राउंड्स पे ट्राई कर रहे हो ड्यू टू विच यू हैव रिवोक द पार्डन। ठीक है। फिर सबसेक्शन 3 आता है, एट सच ट्रायल द कोर्ट शैल बी इंटाइटल्ड टू प्लीड दैट ही हैज कंप्लाइड विद द कंडीशंस अपॉन विच द टेंडर वाज मेड एंड इन विच केस इट शैल बी फॉर द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव दैट द कंडीशन हैज नॉट बीन कंप्लाइड विद। तो ट्रायल के दौरान अक्यूज्ड ये सीधे बोल सकता है कि मैंने पार्डन से कंप्लाई किया है, मैंने कोई वायोलेशन नहीं किया है। फिर प्रोसिक्यूशन को बताना पड़ेगा कि भैया वो उसने कैसे कंप्लाई नहीं किया है। बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ प्रूविंग दैट द approver has given false evidence or has not complied with the condition of pardon is upon the prosecution itself. At such trial the court shall, if अगर वो court of session है तो charge read out करने से पहले explain it to the accused, and अगर वो court of magistrate है तो evidence, फिर जब prosecution के evidence लेने से पहले, मतलब charge frame होने के बाद पर prosecution के evidence लेने से पहले accused से पूछे whether he pleads that he has complied with the condition to which tender of pardon was made. तो subsection 4 आपको स्टेज बताता है कि आप कब पूछ सकते हैं। कोर्ट ऑफ सेशन है तो चार्ज पढ़ने से पहले, चार्ज पढ़ने से पहले, चार्ज बन गया है, एक एसेंशियल कंडीशन होती है ना, चार्ज आफ्टर फ्रेमिंग द चार्ज यू विल रीड द चार्ज टू द अक्यूज्ड पर्सन। तो चार्ज आपने बना लिया है पर चार्ज पढ़ा नहीं है, तब आप अक्यूज से पूछते हैं कि क्या यू हैव कंप्लाइड विद द कंडीशंस ऑफ पार्डन, अगर आप कोर्ट ऑफ सेशन है। अगर आप कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट हैं तो चार्ज पढ़ने के बाद, चार्ज फ्रेम हो गया है, चार्ज पढ़ने के बाद आप उससे पूछते हैं कि चार्ज पढ़ने के बाद आप उससे सीधे पूछते हैं कि आपने उससे कंप्लाई किया है कि नहीं, क्या कहते हैं, टेंडर ऑफ पार्डन की कंडीशन से। ये जो स्टेज आनी चाहिए ये विटनेस फॉर द जो प्रोसिक्यूशन है उसके लेने से पहले आनी चाहिए कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट में। तो अब ऐसा भी हो सकता है चार्ज पढ़ा जा चुका है लेकिन उसके बाद बीच में बहुत डिले हो गया, अभी विटनेस फॉर प्रोसिक्यूशन के एग्जामिनेशन की कोई स्टेज आई नहीं है, तो इस बीच में भी अगर आपने एज अ मैजिस्ट्रेट नहीं पूछा अप्रूवर से कि किस स्टेज पे आप ये जानना चाहते हैं कि उसने पार्डन की कंडीशन से कंप्लाई किया या नहीं, तो इट इज नॉट एट ऑल इरेगुलर और मटेरियल, अभी भी मैंडेटरी आपके ऊपर नहीं बना है। जब मान लीजिए प्रोसिक्यूशन का विटनेस किसी डेट पे आने वाला है, ऑलराइट, मान लीजिए आपका कोर्ट है, आप कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट हो, ए अक्यूज्ड है, ए इज एन अक्यूज्ड हु इज बीइंग ट्राई, जिसका पार्डन रिवोक कर लिया गया है, अब उसको उन्हीं कंडीशंस पे ट्राई किया जाएगा जिसको लेके उसने पार्डन दिया गया था, तो मतलब उसी ऑफेंस के लिए जो उसके लिए वो ओरिजिनली अक्यूज था। तो ऐसे केस में जो मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में यू आर द मैजिस्ट्रेट, आपने उसका चार्ज फ्रेम किया, चार्ज फ्रेम करके आपने चार्ज पढ़ भी लिया, मैं प्रोसिक्यूटर हूं, मैं कहता हूं कि ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट आई एम अप्लाइंग बिफोर यू टू
issue process to my witness who will prove that such accused person has violated the conditions on which he was granted pardon. आप एक डेट फिक्स करते हो उसकी, मान लीजिए वो डेट है 19 सितंबर 2020, ठीक है। तो अब 19 सितंबर 2020 को वो आना है, वो आएगा भी 19 सितंबर को। तो 19 सितंबर 2020 को उसका प्रोसिक्यूशन एविडेंस लिया जाएगा। तो उस डेट से पहले आपको अक्यूज से पूछना है बुला के, अक्यूज हमारे इलस्ट्रेशन में ए, तो यू आर द मैजिस्ट्रेट, आप उससे पूछेंगे कि आपने पार्डन की कंडीशन से कंप्लाई किया है या नहीं। और अगर वो बोलता है हाँ, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है? एज अ प्रोसिक्यूटर मेरे सर पे है कि मुझे साबित करना है, ठीक है। ये इसमें बात है, ये जान लीजिएगा। कोर्ट ऑफ सेशन, अगर आप सेशन जज हैं तो ऐसे केस में चार्ज बनाने के बाद और चार्ज पढ़ने से पहले, तो चार्ज पढ़ने से पहले की जितनी भी स्टेज है, आपको उससे पहले उससे पूछना है कि क्या उसने हैज ही कंप्लाइड विद द कंडीशंस ऑफ पार्डन और नॉट। So if it is the court of session, before the charge is read out and explained to the accused, as a judge of the sessions court, before reading out the charge to him, you have to ask him whether he has complied with the conditions of pardon or not. Alright, then subsection 5 is, if the accused does so plead, the court shall record the plea and proceed with the trial, and shall before the passing the judgment in the case find whether or not the accused has complied with the conditions of the pardon, and if it finds that he has complied with the conditions, then notwithstanding anything in this court shall pass a judgment on acquittal. अब मान लीजिए ये चीजें आ जाए ट्रायल पे, अब इसको ऐसे इमेजिन करिए, यू आर द कोर्ट, और ए जो है, ए ने फुल एंड फेयर डिस्क्लोजर दिया है, लेकिन हो सकता है कि उसका कोई एविडेंस गलत हो, लेकिन उसने देखा, उसने पूरा कंप्लाई किया था, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो बता रहा था वो सच बता रहा था। पर आगे मुझे अदर एविडेंस मिलता है जो उसका जो वर्जन है, अप्रूवर का वर्जन कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो मान लीजिए मैं उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं ऐसे अक्यूज्ड के खिलाफ जिसका पार्डन रिवोक कर लिया गया है। तो ऐसे केस में यू एज अ जज, जब भी आप देखेंगे कि अक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो बता रहा था सच बता रहा था, और उसने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं छुपाया, अपनी तरफ से सच सच बता रहा था, तो इवन दो मैं एक ऐसा विटनेस प्रेजेंट कर रहा हूं जो उसके वर्जन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, जहां आपने पाया वेयर एवर यू फाइंड कि जो ऐसा अक्यूज था जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सच फुल एंड फेयर डिस्क्लोजर कर रहा था, और हो सकता है एक्स्ट्रा एविडेंस की वजह से जो मेरे पास आ गया एज अ प्रोसिक्यूटर, पता चला कि वो जो उसको वर्जन था, जो उसको बताया गया था, जो उसको थ्रू द कोर्स ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम बताया गया था, वो पूरी तरीके से सही नहीं था। बट एज अ जज यू नो कि वो जो बोल रहा था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो एकदम सही बोल रहा था, इट वॉज ट्रू। देन in this situation आप notwithstanding anything, notwithstanding his evidence might be totally of a weak capacity, अब ऐसे accused का जो एविडेंस है बहुत कमजोर कैपेसिटी हो गया, तब भी आप सीधे एक्विट कर देंगे उसको, ठीक है, आप उसे एक्विट कर देंगे। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि मान लीजिए ABC अक्यूज्ड हैं, अब जो BCD हैं वो बहुत बड़े कंस्पिरेटर हैं, वो A को एक काम पे लगाते हैं और उसको बताते हैं कि ये हम जो तुमसे काम करवा रहे हैं ये एक ग्रेटर गुड के लिए है, तुम एक्चुअली ये टिफिन बॉक्स ले जाओ और एक आदमी को डिलीवर कर देना। टिफिन बॉक्स में बहुत सारे ड्रग्स थे। तो अक्यूज्ड को ये तो पता होता है कि कहाँ पे वो गया, किधर गया, किस कोर्स में उसने वो टिफिन बॉक्स डिलीवर किया, पर उसको हो सकता है ये ना पता हो कि BCD कितने और ऑफेंसेस में इन्वॉल्व थे, क्योंकि उन्होंने उसके साथ धोखा किया, उसको नहीं पता था। इवन दो ही इज गिल्टी ऑफ अ क्राइम, ही इज गिल्टी ऑफ अ क्राइम ऑफ पासिंग ऑफ ड्रग्स, ऐसे मान लीजिए आप। तो ऐसे केस में या किसी भी ऐसे केस में जहाँ पे उस पर धोखा किया गया, तो यही देखा जाएगा ऐसे ट्रायल्स में जहाँ पे पार्डन रिवोक किया गया है कि क्या वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सच बोल रहा था। अब मान लीजिए मैं एज अ प्रोसिक्यूटर पाता हूँ कि यार ये जो अप्रूवर है A, जिसको पार्डन दिया गया है, ये तो बता रहा था कि
इसको क्या कहते हैं BCD का कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स नहीं है उसकी नॉलेज में, पर हमें पता चला बाय एक्स्ट्रा एविडेंस कि ये जो BCD है ये हार्डकोर क्रिमिनल्स थे, ये पहले भी कन्विक्ट हो चुके हैं, और इस ग्राउंड पे मुझे लगता है कि ए जो है झूठ बोल रहा है और इसने फुल एंड फेयर डिस्क्लोजर नहीं किया है, तो ऐसे में मान लो एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर मैं सर्टिफाई कर देता हूं आपकी कोर्ट के सामने, और मान लीजिए प्रोसेस आगे भी चल जाता है ऐसे, तो आप जो हैं एज अ जज सिर्फ इतना देखेंगे कि जो ए है एज एन अक्यूज उसने फुल एंड फेयर डिस्क्लोजर किया था या नहीं, अपनी इसकी नॉलेज में जितनी बात थी उसने बताई थी या नहीं, और जैसे ही आपने पाया उसने बताई थी। नॉट विथ स्टैंडिंग मैं ऐसे ऐसे विटनेस प्रेजेंट कर रहा हूं जो दिखा रहे हैं कि भाई वो जो BCD जिसके खिलाफ ए ने एविडेंस दिया है वो कम दिया है, ये देखिए मेरा दूसरा विटनेस आया उसने ये भी बता रहा है कि BCD के खिलाफ पुराने भी केसेस थे, वो हार्डकोर क्या कहते हैं ड्रग सप्लायर्स थे एसेट्रा एसेट्रा, प्रीवियस केसेस में भी कन्विक्ट हुए, इस अप्रूवर ने जब इसको पार्डन दिया गया था तब तो इसने सारी बातें नहीं बताई थी एसेट्रा। तो ऐसी सिचुएशन में एज अ जज आप पूरा केस देखेंगे, आप देखेंगे कि एक तो उसको पता नहीं था कि उसके जो BCD हैं कि उसके कितने पुराने एंटीसीडेंट्स हैं, दूसरा आप ये देखेंगे कि ही वाज लीस्ट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस, तीसरा आप ये देखेंगे कि उसका इतना ज़्यादा इंटरैक्शन भी नहीं था, और जो प्राइमरी क्राइटेरिया है वो आप क्या देखेंगे, जो पार्डन हो आपने किस कंडीशन में दिया था, सारी चीजें बताओ और सच बताओ। तो अगर उसने सारी चीजें बताई हैं आपको, फुल डिस्क्लोजर किया है, ट्रू टू हिज नॉलेज, तो ऐसे केस में आपको सिर्फ इतना ही देखना है, और जहां पे इतना साबित हो गया दैट मोमेंट ओनली, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग, नॉट विथस्टैंडिंग मैं क्या एविडेंस प्रोड्यूस कर रहा हूं क्या नहीं, जैसे ही आपने पा लिया ही हैड नॉट वायलेटेड द कंडीशंस ऑफ द पार्डन एंड ही हैज मेड फुल डिस्क्लोजर, कोई फॉल्स एविडेंस नहीं, तुरंत ऑर्डर ऑफ अक्विटल, तुरंत, ठीक है, दैट इज इट। और इसमें कुछ नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता भी नहीं है, मोस्टली वो सेक्शन पूछते हैं, इससे ज़्यादा वो आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। ये नुआंसेस थे जो मैंने अपनी तरफ से कवर करा दिए। प्राइमरली मैं अपने जूनियर्स को ज़्यादा बताता हूँ कि क्योंकि अगर उन्हें प्रैक्टिस करना होता है या एकेडमिक पॉइंट्स जानने होते हैं, लेकिन फ्रॉम द एग्जामिनेशन या जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी आपको आई थिंक आते नहीं है। लेकिन अगर इंटरव्यू में हो सकता है कोई जज आपसे ऐसा पूछ ले, ऐसा हो सकता है इंटरव्यू में, बट जहाँ तक मेंस की बात है तो जो प्रीलिम्स की बात है, तो ये जो रिवोकेशन ऑफ पार्डन और ये सारी जो बातें जो मैंने अभी आपको बताई कि ए देवेंद्रन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, या पास्कल फर्नांडिस वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, या जो आपका रणधीर वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, क्या वो क्रॉस एग्जामिन कर सकता है या नहीं, फिर क्या CJM ने जो देवेंद्रन का रेशियो था कि CJM ने केस कमिट करने के बाद पार्डन दे दिया तो क्या है, पेटेंट इफेक्ट ऑफ इरेगुलरिटी है या नहीं, एक्सेट्रा, फिर उसका इफेक्ट क्या होगा, ये सारी चीज़ें एग्जाम जुडिशियल एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। जैसे कि जुडिशियल एग्जाम का जो रेलम है ना वो बहुत छोटा सा है, नॉलेज का जो रेलम है वो बहुत बड़ा है। जुडिशियल एग्जाम का रेलम एक बहुत एक टनल की तरह है, वो टनल विजन में आपको देखना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको वही पढ़ना है जो पॉपुलर टॉपिक्स हैं, वही मैं आपको बताता रहता हूँ जिससे आपको प्राइमरली क्वेश्चन आएंगे। मैंने उन टॉपिक्स में आपको सिर्फ जुडिशियल सर्विस के हिसाब से ही नहीं, प्रैक्टिस के भी हिसाब से करवाया है और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी करवाया कि जिससे अगर आप कोई भी ऑप्शन पर यूज़ करना चाहें, चाहे वो जुडिशियल सर्विस हो, चाहे एकेडमिक्स हो, चाहे कुछ भी हो, या कंसल्टेशन हो, पैरालीगल हो, एनीथिंग, you are fully capable of handling all these topics that I have covered. All right. तो ये एक बोनस लेक्चर था for you. That is it.